توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے طلبگاروں روح آدم کے ماننے والوں قرآن کریم کے فداکاروں سرور کائنات مفخر موجودات سید السادات صاحب کمالات جامع حسنات مجیب الدعوات رسول ذیشان صاحب قرآن لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد علی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیہ نشاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امراپور کے خطیب و امام مولانا افسر صاحب بہت ہی اچھے انداز میں بتا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے، مگر جو تھے اس میں بھی کم ہی ہوئے، بڑھے نہیں۔ اور ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے کہ ہاں جام نگر اور امراپور ریتا لاٹھی کے لوگوں کو دیکھ کر کے خودیانہ والے بھی ادھر ادھر چکر کھا رہے ہیں، ورنہ خودیانہ کے ہمیشہ محفل ہوتی ہے، ہر جگہ وہ بیٹھتے ہیں، مگر ان لوگوں کو دیکھ کر کے یہ نہیں بیٹھتے تو ہم کیوں بیٹھیں، یہ نہیں سنتے تو ہم کیوں سنیں۔ ورنہ کبھی خودیانہ والوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ کہیں بھی جائیں گے، خودیانہ میں ہو یا غیر کہیں جگہ پر جاتے ہیں تو وہ بیٹھ کر کے سنتے ہیں، مگر یہاں آ کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے وہ بھی ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب کہاں کہاں سے بس آئی ہے، گاڑی آئی ہے، موٹر سائیکل آئی ہے، جگہ نہیں ہے باہر رکھنے کی، مگر بات سننے میں آتا ہے یہاں جام نگر سے آئی، وہاں سے آئی، بس آئی، مگر یہاں گن لو تو ایک بس کے ڈرائیور مانو تو بھی نہیں، ایک ڈرائیور کی ٹکٹ کے رکھو تو بھی نہیں، چار پانچ لوگ یہ جام نگر کے ادھر ادھر کے ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ حضرات، ہم کو رات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں آئے اور کس کی بارگاہ میں آئے اور کس نیت سے آئے، یہ خیال کرنا چاہیے ہم کو رات کو، کہ وہ کام ہم کو رات کو کرنا چاہیے کہ حضرت
पीर की बात हम कुछ खिराज अक़ीदत पेश करें, तो अगर हम उनको राज़ी कर लेंगे तो जब वो राज़ी हो जाएंगे तो मेरा परवरदिगार राज़ी हो जाएगा। और जब हमारा और आपका परवरदिगार राज़ी हो जाएगा तो हमारी और आपकी दुनिया भी समझ जाएगी और आएगा, और हमारा और आपका आना भी कबूल हो जाएगा। यहाँ किस लिए आए, क्यों आए, उसका फायदा हमको और आपको मिलेगा। और यहाँ आने के बाद हम और आप ये कहते हैं कि आप एक बार अगर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आपको 10 नेकियां मिलेंगी, और अगर एक मर्तबा अगर आप सुबहान अल्लाह कहेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। तो यही बताया जाता है, महफिलों के अंदर कहा जाता है कि अपने नबी के ऊपर तुम दुरूद पाक पढ़ो, तुम सुबहान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, यही बताया जाता है। इसी तरह एक मौलाना तकरीर में कह रहे थे कि जो लोग नबी के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो कल क़यामत के दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चादर के नीचे दुरूद पाक पढ़ने वाले को अपने चादर के नीचे ले लेंगे। कब? कल क़यामत के दिन। जो दुरूद पाक एक मर्तबा अपनी जिंदगी में पढ़ेगा उसको भी हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चादर के साए तले मेरे आका उसको ले लेंगे। तो एक नाहंजार इंसान था, उसने सवाल किया कि आप कह रहे हैं यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा तो मेरे आका अपने चादर के नीचे ले लेंगे। तो इतनी बड़ी दुनिया है, और जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक लोग दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, तो नबी की चादर कितनी बड़ी होगी, कितने मीटर की होगी, जो नबी अपने चादर के नीचे लोगों को ले लेंगे। क्या सवाल किया कि कितनी मीटर की चादर होगी जो दुरूद पाक जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक लोग पढ़ते रहेंगे, कितने लोग होंगे, चादर कितनी बड़ी होगी। उसने ये सवाल किया। अब सवाल कर देने के बाद जब मौलाना से उसने सवाल किया कि आप इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा बता रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। जब ये कहा तो मौलाना ने कहा ठीक है, तेरे को इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। कहा कैसे? अब बुलाया उसको अपने पास। बुलाने के बाद में कहा कि तू सवाल ये कर रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो मेरे आका कल क़यामत के दिन उसको अपनी चादर के साए तले ले लेंगे। तो ये कैसे, कितनी बड़ी चादर होगी, कितने मीटर की होगी, जो सरकार के ऊपर कितने लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं। अब जब ये सवाल किया वो मौलाना ने कहा कि ठीक है। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब आंखों से आंसू निकलने लगे तो अब उसने सवाल किया आपकी आंखों में आंसू क्यों देख रहा हूँ, क्या आप डर गए? कहा डर नहीं गया। कहा कि तू पढ़ा लिखा हो करके इस तरह सवाल कर रहा है, इसलिए मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। कहा तो फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आप जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। कहा ठीक है, मैं तेरे सवाल का जवाब ऐसे कैसे दूं, तू अपने मालदार बाप का बेटा है, अब अपने बाप मालदार बाप का बेटा हो करके
तू मदीना शरीफ नहीं देख सका। तो अब जब ये कहा तो कहा आपको क्या मदीना देखना है? कहा हमको मदीना देखना है। कहा कैसे? कहा कि आपको एकदम पूरा मदीना का नक्शा मैं दिखा दूं। कहा हाँ, आप हमको मदीना शरीफ का नक्शा दिखा दीजिए। अब वो अपने घर गया और लैपटॉप लेकर के आया। मोबाइल में हर एक चीज में दिखाया जाता है, मदीना शरीफ का नक्शा दिखाया जाता है, मक्का शरीफ का नक्शा दिखाया जाता है। वो लेकर के आया और खोला, कहा देखो ये मदीना शरीफ है। अब जब वो मौलाना ने मदीना शरीफ देखा, अब देख लेने के बाद में अब मदीना शरीफ की जगह जगह वो दिखा रहा है कि ये मदीना शरीफ में ये जगह है, कहा ये जगह है, कहा ये जगह है, ये सब दिखाता जा रहा है। वो मौलाना देखते जा रहे हैं। कहा ठीक है, मैंने मदीना तो देख लिया। कहा क्या तू मक्का भी दिखा सकता है? कहा हाँ, मैं मक्का भी दिखा सकता हूँ। अब मक्का शरीफ दिखाना शुरू किया। अब जब मक्का शरीफ दिखाने लगा, कहा मक्का शरीफ की ये जगह है, मक्का शरीफ की ये जगह है, आबे जमजम यहाँ पर है। ऐसे ऐसे सारी चीजें मक्का शरीफ की वो दिखाने लगा। जब सारी चीजें दिखा दिया तो कहा क्या दिल्ली का लाल किला भी दिखा सकता है? कहा दिल्ली का लाल किला भी दिखा सकता हूँ। अब जब दिल्ली का लाल किला दिखा दिया, अब उसके बाद में कहा कि हाँ, क्या शाहजहां का ताजमहल भी दिखा सकता है? कहा हाँ, वो भी दिखा सकता हूँ। अब वो दिखाया। जब ये सारी चीजें दिखा दिया तो जब दिखा देने के बाद में कहा अब आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। तो वो मौलाना ने कहा ये तेरे सारे सवालों का जवाब यही तो है कि जब ये तेरे छोटे से मोबाइल के अंदर सारी दुनिया जब दिखाई जा सकती है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर पाक के अंदर सारी दुनिया क्यों नहीं आ सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत वकड़िया वली सुल्तानी, नारे तकबीर। ये छोटे से मोबाइल के अंदर जब ये सारी दुनिया दिखाई जा सकती है तो नबी के चादर को क्यों माप रहा है? नबी के चादर को क्यों माप रहा है कि हाँ नबी की चादर कितनी होगी? तो तेरे सवाल का यही जवाब है। तो मेरे दोस्तों, हम और आप अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते हैं और हम और आप फातिहा खानी करते हैं, मज़ार के ऊपर जाते हैं, फातिहा खानी करते हैं, महफिल पाक होती है, वहाँ पर फातिहा खानी होती है। इसी तरह एक जगह पर जब फातिहा खानी के लिए जब फातिहा पढ़ने लगे, फातिहा पढ़ते पढ़ते हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, सहाबा की बारगाह में, ताबईन की बारगाह में, औलिया में, सालिहीन की बारगाह में, सिद्दीकीन की बारगाह में, अब ये फातिहा पढ़ते पढ़ते 30-35 मिनट हो गया। जब फातिहा सबकी बारगाह में पढ़ लिए, जब फातिहा पढ़ लेने के बाद में अब वही फातिहा पढ़ने वाले की बारगाह में एक अनजान आदमी आया और आकर के कहने लगा कि आप इतनी देर से फातिहा पढ़ते जा रहे हैं, आदम से लेकर के ईसा तक, नबियों में और सिद्दीकीन में, शुहदा में, सालिहीन में, सब पर आप फातिहा पढ़ते जा रहे हैं। आधा घंटा तक आप फातिहा पढ़ते रहे, मगर ये तो बताओ कि जो सिरनी थी वो सिरनी में कोई कमी नहीं आई, जो पानी था वो पानी में कमी नहीं आई। आधा घंटा तक नबियों की बारगाह में, सालिहीन की बारगाह में, औलिया की बारगाह में, शुहदा की बारगाह में, सबकी बारगाह में तुम भेजते रहे, मगर इसमें कमी नहीं हुई। ये झूठ ही है। हाँ, ये झूठ ही है। इतनी देर से सबकी बारगाह में पेश करते चले जा रहे हो, मगर इसमें तो कुछ कम नहीं हुआ। एक गिलास पानी रखा था, पूरा पानी मौजूद है। जो सिरनी रखा था वो पूरा सिरनी अभी मौजूद है, उसमें कम नहीं हुआ। कहा हाँ, कम तो नहीं हुआ। अब जब कहा कम नहीं हुआ तो कहा ये कैसे हो सकता है कि सबकी बारगाह में ये पहुंच गया? सबकी बारगाह में पहुंच ही नहीं सकता है। अगर सबके पास गया होता तो इसमें कम हो गया होता। कम तो कुछ हुआ नहीं है। अगर हम उगड़िया पीर की बारगाह में हम फातिहा खानी करें तो इसमें कम तो हुआ नहीं है, तो कैसे उगड़िया पीर की बारगाह में ये पहुंचा है? अब जब ये सवाल किया तो मौलाना ने कहा कि मेरा मोबाइल बंद हो गया है, स्विच ऑफ हो गया है, मोबाइल मेरा खुल नहीं रहा है और मुझे कल की तारीख लेनी है, ये परेशान हूँ। कहा कि आपके लड़के की याद है
कहा नहीं, का मोबाइल मोबाइल मतलब नंबर है याद नहीं है। तो कहा नंबर याद नहीं, कहा नहीं। तो कहा खत लिख करके भेज दीजिए और खत से जवाब आप अपने लड़के से ले लीजिए। कहा ये हिंदुस्तान है, अगर जियारत में खत लिख करके भेजेंगे तो चहल्लू हो जाएगा, खत वापस नहीं आएगा। ये कैसे, हमको कल की तारीख चाहिए। अब बहुत परेशान। कहा चलिए आप, और जाकर के अब एक दुकान पर गए और जेरोक्स की दुकान पर जाकर के मेले किया और अपने लड़के को उसने भेज दिया। अब इन्होंने जो कुछ लिखा था उसको अपने लड़के के पास भेज दिया। लिख करके दिया था वो कागज, वो उसने इनके मौलाना के हाथ में दिया और वो कागज पहुंच गया, दूसरा कागज पहुंच गया। जब दूसरा कागज पहुंच गया तो ये कागज को जब मौलाना के हाथ में दिया, कहा कि इसको मुझे क्यों दे रहे हो? कहा जो कागज आपने भेजा था वो कागज तो वहां पहुंच गया। तो कहा वो कागज पहुंच गया। कहा अरे नादान, यही तो तेरे सवाल का जवाब है कि जो कागज मजमून मैंने लिखा था वो मेरे पास है, मगर इसका मजमून है जो मेरे बेटे के पास पहुंच गया। तो इसी तरह जब आदम से लेकर के ईसा तक हजरतों से आदम की बारगाह में जहां जहां जिसकी बारगाह में जब पेश किया गया तो वो उनकी बारगाह में पहुंच गया। जिस तरह ये कागज मेरे पास रह गया, इसी तरह उसका सवाब उनके पास पहुंच गया। कागज जिस तरह मेरे हाथ में, इसी तरह सिर भी सामने रह गया। ये शाम होता फातिहा को लेकर, अगर फातिहा पढ़ते तो उसका सवाब, इस तरह सवाल जवाब करते हैं। और ये सब किसने तरीका सिखाया? हमारे और आपके आला हजरत। इसने आला हजरत ने, बहुत ऐसे लोग हैं जो आला हजरत के नाम से चिढ़ते हैं, मगर कहाँ तक चिढ़ोगे? बरेली कौन से लफ्ज से शुरू होता है? बा से, और बा बहिष्ट का माना क्या होता है? जन्नत। तो अब बरेली का जो रास्ता है, जो आदमी चाहे वो इख्तियार करे कि बा से बरेली और दा से देवबंदी और दा से दोज़ख। अब जो चाहे वो इख्तियार करे, जो चाहे दोज़ख इख्तियार करे, जो चाहे बहिश्त इख्तियार करे। आज आला हजरत के नाम से चिढ़ने वालों से ये कहो कि हम और तुम ही आला हजरत का नाम नहीं लेते, बल्कि रोजाना 24 घंटा 56 जगह पर आला हजरत का नाम गैर मुस्लिम भी लेते हैं और मुस्लिम भी लेते हैं कि रोजाना सुबह जब बरेली शरीफ से जब आला हजरत ट्रेन कचपुज के लिए निकलती है तो 56 जगह पर यह ऐलान होता है कि आला हजरत ट्रेन आ रही है। 56 जगह पर गैर मुस्लिम आला हजरत का नाम ले लेकर के करते हैं और हर एक दूसरे से पूछते हैं कि आला हजरत ट्रेन आ गई, आला हजरत ट्रेन आ रही है, कहाँ पहुंची, कब पहुंचे जी? हर एक दूसरे से पूछते हैं। ये शान है हमारे और आपके आला हजरत। अरे दियो के बंदों से हमको क्या गरज, दियो के बंदों से हमको क्या गरज? हम हैं अब्दे मुस्तफा, हम हैं अब्दे मुस्तफा, तुझको क्या? बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या? या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या? मेरे दोस्तों, हमको और आपको ये चाहिए, कहीं भी महफिल हो उस महफिल के अंदर बैठना चाहिए। यमन का बादशाह के घर पे मिलाद शरीफ थी, महफिल पाक। अब बादशाह ने दावत दिया, तो बादशाह जब दावत देगा तो बड़े बड़े लोगों को देगा, किसी छोटे आदमी को तो दावत देने वाला नहीं है। तो जब बादशाह ने बड़े बड़े लोगों को दावत दिया तो उसी यमन शहर के अंदर एक लड़की और एक माँ, उसका शौहर नहीं था। मगर जब ये सुना कि बादशाह के घर पे आज महफिल पाक है, रसूल पाक की मिलाद है, तो माँ बेटी ने आपस में मशवरा किया कि आज बादशाह के घर जाकर के नबी का जिक्र हम सुनेंगे। अब माँ बेटी दोनों नबी का जिक्र बादशाह के घर पहुंचे। दरवाजे के ऊपर दरबान खड़ा,
हाथ पकड़ा, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा सुना है कि आज नबी का जिक्र होने वाला है। कहा कार्ड बताओ, दावतनामा बताओ। कहा नबी के जिक्र के लिए दावतनामा की क्या जरूरत है? अरे भाई नबी का जिक्र सुनने के लिए दावतनामे की क्या जरूरत? कहा तुम जैसे लोगों को अंदर आने का कोई अलाउड नहीं, अंदर नहीं आ सकती हो, बाहर निकलो। अरे तुम्हारे कपड़े की बदबू की वजह से बादशाह के मेहमानों को बीमारी लग जाएगी, तुम यहाँ से निकलो। अब दरबार ने माँ बेटी को दोनों को वहां से निकाल दिया। जब बादशाह के दरबार ने निकाल दिया तो अब माँ बेटी की आंखों में आंसू आ गए। अब माँ बेटी दोनों रोने लगे कि काश हमारे पास भी माल और दौलत होता तो आज हम भी नबी का जिक्र सुनते। मगर बेटी ने कहा अम्मी जान परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो हम घर चल करके अपने घर में पोता लगा करके अगरबत्ती लगाती हो और मैं नबी की नाक पढ़ूंगी, तुम सुभान अल्लाह कहना, मैं नबी की नाम सुनना। कहा ठीक है। अब बेटी गई अपने मकान के अंदर, पोता लगाया, खुशबू अगरबत्ती वगैरह लगा करके अब बेटी नाक पढ़ने लगी। माँ है वो सुन रही है, सुभान अल्लाह कह रही है, अपनी बेटी को माँ दाद दे रही है। इतने में क्या देखते हैं कि हाँ दो नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग उनके मकान के अंदर आए और वो भी बैठ करके अब लड़की की नाच सुन रहे हैं। लड़की जो पढ़ रही है वो सुन रहे हैं। अब जैसे आज पढ़ना बंद किया, शराब पढ़ा, शराब पढ़ने के बाद अब वो क्या देखती है लड़की और उसकी माँ कि वो एक बुजुर्ग है, वो जा रहे हैं और उनकी जगह पर जिस जगह वो बैठे हुए थे एक बुजुर्ग है जो वो उस जगह को चूम रहे हैं। जब चूमते हुए देखा तो अब उस लड़की ने अर्ज किया कि अय अल्लाह के नेक बंदे जरा ये तो बता दीजिए कि आप कौन हैं और जिस जगह पर वो बुजुर्ग बैठे हुए थे उनकी जगह को आप चूम रहे हैं वो कौन थे? कहा अय बेटी सुन, जिस जगह को मैं चूम रहा हूँ वो कोई और नहीं नबी पाक थे, रसूल पाक थे जो तेरी नात सुनने के लिए मेरे आका तशरीफ लाए। तो जिस जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र उस जगह पर हमारे और आपके आका तशरीफ लाते। अब जो जगह चुम रहे थे वो कोई और नहीं वही अब्दुल कादिर जीलानी, वो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो रसूल पाक जिस जगह पर तशरीफ फरमा थे उस जगह को गौसे आजम चूम रहे। ऐसी महफिलों में जहाँ अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है या अल्लाह के रसूल के महबूबीन का जिक्र होता है उस जगह पर हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। मगर एक हम और आप है जो ऐसी जगह से हम और आप भागते हैं, मगर ऐसी जगह से भगाने वाला कौन है? कोई और नहीं, वो शैतान है जो ऐसे नेक जगह पर लोगों को आने से वो रोकता रहता है, अच्छी जगह पर वो आने नहीं देता है। तो मेरे दोस्तों शैतान को अपने ऊपर हावी मत होने दो, तुम शैतान के ऊपर हमको खुद हावी होना चाहिए। मेरे दोस्तों ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है कि जिस जगह पर हमारा और आपका यकीन है यहाँ पर कोई और नहीं वो मेरी आपकी खुद तशरीफ फरमा। हमारे और आपके आंखों के अंदर वो नूर नहीं है कि हम और आप वगड़िया पीर, मगर हमारा और आपका ये यकीन है कि वगड़िया पीर हमको और आपको देख रहे हैं। ये यकीन है हमारा और आपका कि वगड़िया पीर हमको और आपको देख रहे हैं। हमारा वो नूर नहीं है कि हम और आप उनको देख सके, मगर ये जरूर यकीन है कि वो हमको और आपको देख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों अल्लाह वालों का जिक्र होता है कभी भी कहीं नहीं कहीं भी हो, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वहाँ पर आपको हमको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हाजिर होना चाहिए और हाजिर होकर के सवागत हमारा आपका ही फायदा है। अगर हम और आप अगर हमारे और आपके ऊपर इन अल्लाह वालों की नज़र पड़ गई तो हमारी दुनिया और आखिरत समझ जाएगी। यही होता है यकीन कि हाँ अल्लाह वाले की नज़र कि जुस्तजू करो कि अल्लाह वालों की नज़र हमारे और आपके ऊपर पड़ गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमको और आपको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप
आमीन आमीन वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर के सलात व सलाम करें। दर पे हाजिर है हम कीजिए कहाँ करम हम पे हर दम। अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म। दर पे हाजिर है हम कीजिए कहाँ करम हम पे हर दम। अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म। सुबह सादिक का मुलाई लो सवारी मोहम्मद की आई। सादिक ये पैगाम लाई लो सवारी मोहम्मद की आई। डालियाँ झुक गई कलियाँ खिल गई बोली सबनम। अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म। दर पे हाजिर है हम कीजिए कहाँ करम हम पे हर दम। अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म। तुमने दुनिया में जलवे दिखाकर रोशनी की अंधेरों में आकर भूला भटका हुआ राहे हक पा गया सारा आलम। अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म। दर पे हाजिर है हम कीजिए कहाँ करम हर दम। आमीन रसूल मुअज़्ज़म। या सफी मुझ नबी अब खबर लो या रहमतल आलमीन अब खबर लो। हम मुसलमानों पर हो करम की नजर साहे आलम। अस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म। दर पे हाजिर है हम कीजिए कहाँ करम हम पे हर दम। अस्सलाम रसूल तीन बार दुरूद शरीफ, तीन बार कुल अल्लाह शरीफ के मदद सूरह फातिहा पढ़िए। या इलाही हर जगह तेरे अता का साथ हो, जब बड़ी मुश्किल मुश्किल गुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाओ नज़ा के तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो। या इलाही जब ज़ुबानें बाहर आए प्यासे साहिब कौसर शहीद अता का साथ हो। या इलाही जो दुआएं नेक हम सब तुझसे करें खुद से कुलरसा रब्बना का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाएं दौलत बेगार इश्क़ मुस्तफा का साथ हो। मालिक मौला सर शाम से लेकर के अब तक खातम मुक़द्दस सलातो सलाम पढ़ा गया। मालिक मौला तेरा ज़िक्र व अस्तार के मुक़द्दस कलाम की तिलावत की में दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ा गया।
مولا کریم کسی قسم کی خطا لفظ قصدت کے انسان غلطی سرزد ہوئی مالک مولا ان تمام خطاؤں کو معاف فرما کر کے جو تو ثواب عطا کرتا ہے اپنی جانب سے سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کرتے مولا قبول فرما مالک مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کل اہل خاندان کل نبیین صدیقین شہداء و صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول عطا فرما مولا کریم کل صحابہ کرام تبع تابعین خلف علیہم اجمعین اشرا مبشرہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول عطا فرما مالک مولا پنجتن پاک حضرات حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ تقیہ نقیہ شفیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسن حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول عطا فرما مالک مولا 72 نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول عطا فرما مولا کریم خصوصاً بالخصوص حضور پیر میرا میرا شاہ ضلع حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما مالک مولا خصوصاً بالخصوص حضور خواجہ خواجہ مالک ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صدری کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما مالک مولا حضور سلطان الشہداء فیلن سید سالار مسعود غازی بہریچی شہید الشہداء بہریچ خدا بہریچ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما مالک مولا ان سب کا صحیح اسباب جملہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول عطا فرما مالک مولا حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور تاج الشریعہ رضا خان ازہری کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما مالک مولا بریلی کی سرزمین پر جتنے بھی علماء کرام آرام فرما مولا کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے تمامی علماء کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما مالک مولا جملہ مومنین مومنات مسلمین والمسلمات کی روح کو پیش کرتے مولا قبول فرما خصوصاً بالخصوص حضور سیدنا وغیرہ پیر سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما مالک مولا جس مقصد کے لیے اس فاتحہ خوانی کو رچایا بسایا گیا جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا مالک مولا حضور سلطان وغیرہ پیر سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے مالک مولا سب کی دل جیس تمنا اور مقاصد کو پورا عطا فرما مالک مولا جو بھی بیمار اور پریشان ہیں حضرت کے وسیلے سے مالک مولا تم سب کی پریشانیوں کو درگزر عطا فرما سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما جس مقصد کے لیے حصہ لیا ہو مالک مولا سب کو ان کے مقصدوں میں کامیابی کامرانی عطا فرما ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا لاج رکھ مالک مولا ہمارے تمام دل جائز تمنا اور مقاصد کو پورا عطا فرما اس محفل خانہ کے صدقے میں مولا کریم ہمارے تمام اہل خانہ سے جتنے بھی اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں سب کی مغفرت عطا فرما مالک مولا ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما مولا کریم تیری بارگاہ میں حضور تاج الشریعہ کے تقوی اور مفتی اعظم ہند کے تقوی کا واسطہ مالک مولا حضرت کے مجددیت کا واسطہ مولا کریم غوث اعظم کے غوثیت کبریٰ کا واسطہ مولا کریم حضور خواجہ غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواجگیت کا واسطہ یا اللہ تیری بارگاہ میں صابر پاک کے صبر کا واسطہ یا اللہ تیری بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر تطہیر کا واسطہ یا اللہ تیری بارگاہ میں حضرت امام حسین کے آخری سجدے کا واسطہ یا اللہ تیری بارگاہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام محمد کا واسطہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما اور جس مقصد کے لیے اس محفل خانوں کو کیا گیا مولا کریم تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدایا بحق بنی فاطمہ کے در قول ایمان کرم خاتمہ عدد دعوت مرد کنی والقبول مرود استدامان علی رسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.